साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। मशरक़ी गोदावरी में हलचल मचाने वाले इंजेक्शन हमले अब हैदराबाद में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मलकाजगिरी में चौथी जमात की एक तालिबा पर इंजेक्शन हमला किए जाने की खबर है। स्कूल को रवाना होने वाली लड़की को बाइक पर सवार नामालूम शख्स इंजेक्शन हमला करके फरार हो गया। मुतासिरा लड़की लिली मॉडल स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। मुतासिरा लड़की को मुकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया। इस वाक़े के बाद हैदराबाद की पुलिस चौकस हो गई है और मुलजिम की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। महबूबनगर जिले में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सुबह से ही आरटीसी बसों के सामने बैठकर धरना दिया। महबूबनगर समेत नगर कर्नूल, कोल्हापुर, अचमपेट हलकों में कांग्रेस कायदीन ने आरटीसी डिपोज के रूबरू एहतजाज किया। महबूबनगर जिला परिषद इजलास के दौरान कांग्रेस एमएलए राम मोहन रेड्डी और टीआरएस एमएलए बालाराजू की जानिब से हमला करने की मुखालिफत में कांग्रेस कायदीन बंद मना रहे हैं। हड़ताली कायदीन ने बसों को डिपोज में ही महदूद कर दिया। दुकानात और बाजार बंद रहे। टीआरएस एमएलए बालाराजू को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। గత సంవత్సరం నుంచి ఈ జిల్లాలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, వాళ్ళ కార్యకర్తలు, వాళ్ళ నాయకులు అహంకార ధోరణితో రాజకీయాలకు మచ్చ తెచ్చే విధంగా వ్యవహరిస్తున్న శైలిని చూసి ఈరోజు ప్రజలు సహించడానికి సిద్ధంగా లేరు. గతంలో వనపర్తి సీనియర్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారి మీద చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్న జిల్లా పరిషత్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కరువు మీద చర్చించే తీర్మానం చేయాలని పట్టుబడితే దాన్ని భరించలేక మంత్రులు ప్రత్యేకంగా పరోక్షంగా ఎమ్మెల్యే గారిని ప్రోత్సహించి ఎమ్మెల్యే గుండా బాలరాజు గారు మా ఎమ్మెల్యే మీద దాడి జరిగింది. ఈ దాడిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్య కునిదినంగా భావిస్తున్నాం. మా ప్రధానమైన డిమాండ్లు బాలరాజు గారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. బాలరాజుని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. సీఎం గారు, స్పీకర్ గారు, గవర్నర్ గారు జోక్యం చేసుకొని ఆయన సభ్యతను రద్దు చేసి రాజకీయాలకు దూరం పెడితే కొత్త రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఉందని చెప్పి నమ్మకం ప్రజలకు కలిగిందని చెప్పి తెలుసుకుంటున్నాం. गांधी अस्पताल सिकंदराबाद के नौमौलूद बच्चों के वार्ड में चूहों ने हलचल मचा रखी है। डॉक्टरों ने हरकत में आते हुए अस्पताल सुपरिटेंडेंट को खबर की तो वार्ड में फौरी चूहे पकड़ने का इंतजाम किया गया। याद रहे कि हाल ही में गुंटूर केजीएस अस्पताल के आईसीयू में चूहों ने नौमौलूद पर हमला करके उसे खत्म कर दिया था। इसके बाद सरकारी अस्पतालों में चौकसी बढ़ती जा रही है। जीरो तिजारत को हुकूमत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कमर्शियल टैक्स में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने ताजिरों से कवायद के मुताबिक टैक्स अदा करने का मशवरा दिया। वोट के बदले नोट मामले में वायएसआर कांग्रेस के तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वोट के बदले नोट मामले से बचने के लिए ही चंद्रबाबू नायडू ने 5वें दिन ऐवान में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि बाबू को खुद के मफाद के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ఒక ఎమ్మెల్యేని 5 కోట్ల పైచులుగా కొనడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఉదంతం, ఒక శాసనసభ్యుడే మరి ఒక శాసనసభ్యుడు ఇంటికి వెళ్ళి, ప్రజాప్రతినిధి ఇంటికి వెళ్ళి, మా నాయకుడు పంపించాడు మీకు 50 లక్షలు తీసుకోండి అని ఇస్తూ డైరెక్ట్గా దొరికిపోయినటువంటి అతి ఘోరమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో తల దించుకునేటటువంటి సంఘటన. ఏసీబీ మరొక ముఖ్యమంత్రిని నేరం చేశాడనేటువంటి నిర్ధారణకు వచ్చి ఛార్జ్ షీట్ పడవేసినటువంటి పరిస్థితి. ఒక ముఖ్యమంత్రి టోన్ని గుర్తుపట్టి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో ఇతనే మాట్లాడని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినటువంటి పద్ధతి దేశ చరిత్రలోనే ప్రప్రథమైనటువంటి ఘట్టం ఇది. దీంతో నిజంగా తెలుగు జాతి మొత్తం తల దించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాసనసభకు రావాలంటే సహజంగానే భయపడిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. ఎక్కడ ఇది ప్రశ్నలు ఉద్భవిస్తాయో శాసనసభలో అని భయపడి కేవలం 5 రోజులకు చేసి దీని నుంచి తప్పుకుపోవడం కోసం శాసనసభలో చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తించినటువంటి తీరు ఈ 5 రోజులు మనం చూశాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని దూషించడం తప్ప మరొకటి లేదు ఏజెండా అనే పద్ధతుల్లో ఆయన దూషించారు. ఆయనకు సంబంధించినటువంటి తాబేదారులుగా ఉన్నటువంటి మంత్రులు, శాసనసభ్యులు దూషించడమే పని. నిరంతరం ప్రజల సమస్యల కోసం బయట లోపల పోరాడుతున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సైకో అని ఒక ముద్ర వేసి ఆయన దూషణ భూషణలు చేసి దాని కింద మీ తప్పిదాలన్నింటినీ కూడా
పక్కన పెట్టుకొని పారిపోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి భాగంగానే కావాలని మీరు ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం। एपी रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ में मामले में एपी कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। एपीसीसी के सदर देवीनेनी ने कहा कि वादे से मुकरने वाले इन तीनों कायदीन पर रियासत के तमाम पुलिस स्टेशनों में सेक्शन 420 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तिरुपति में एसिड हमले का शिकार जरीना बेगम की मौत वाक़ई हो गई। अपने शौहर की जानिब से एसिड हमले का शिकार जरीना 2 महीने तक चेन्नई में जिंदगी की लड़ाई हार गई। जरीना बेगम पर उसके साबिक शौहर ख्वाजा हुसैन ने जुलाई के महीने पर उस पर एसिड हमला किया था। उस वक्त से जरीना चेन्नई के अपोलो अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज थी, जिसका आज इंतकाल हो गया। ऐसे जुमराबंदी का मुतालबा करते हुए एमआरपीएस कायदीन और कारकुनों ने अनंतपुर जिला कलेक्टोरेट का घेराव किया। एहतजाजियों ने कलेक्टोरेट पर चढ़कर खुदकुशी करने की भी धमकी दी। एहतजाजियों ने कहा कि बाबू ने पहले वादा करके वोट हासिल किए, मगर इख्तिदार पर आने के बाद मादेगा से किया गया वादा भूल गए हैं। पुलिस ने इस मौके पर एमआरपीएस कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया तमाम को रुलाने वाले 3 साला शामी लड़के आयलान कुर्दी की आज तदफीन अमल में आई। शाम के शहर कोबान में कुर्दी की तदफीन अमल में आई है, जिसमें हजारों की तादाद में सोगवारों ने शिरकत की। याद रहे कि शाम में जंगी हालात के पेश नज़र अब्दुल्ला कुर्दी अपनी बीवी रेहाना और अपने बच्चों के साथ समुद्री रास्ते से नकले मकानी कर रहे थे कि बहरी हादसे के दौरान अब्दुल्ला की अहलिया और उनके 2 बच्चे हलाक हो गए, जिनकी आज तदफीन अमल में आई। अब्दुल्ला के 3 साला लड़के आयलान कुर्दी की लाश समुद्र में बहकर तुर्की के साहिल पर पहुंच गई थी। इस सानिहे ने सारी इंसानियत को अश्कबार कर दिया। रेत पर मुसव्वरी के माहिर सुदर्शन पटनायक ने आयलान कुर्दी को अपने फ़न के ज़रिए खिराज पेश किया। उन्होंने पूरी समंदर के साहिल पर कुर्दी की लाश की मुसव्वरी की और मरती इंसानियत को जगाने की कोशिश की। उन्होंने इंसानियत की बका की कोशिश का पैगाम दिया। विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दुखदायक स्थिति है। जो बच्चा जो देखने मिला तो वो सी शोर पे ही पड़ा हुआ था। जो इस शोर पे हम लोग साइंस कल्चर क्रिएट करते हैं। जब मैंने ये पिक्चर्स को देखा तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट इतना बड़ा कष्ट हुआ। तो हम ये सोचते हैं कि सारा विश्व में इसके ऊपर बात करना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हर कंट्री आगे आके इसके ऊपर ज़रूर एक रास्ता निकालना चाहिए। और मैं यूएन को भी अपील करता हूँ, यूएन भी इसमें अपनी जी जान लगा के कोशिश रहना चाहिए। और इसी के ऊपर हम लोगों ने साइंस कल्चर के थ्रू ये स्कल्पचर्स हम लोग क्रिएट किया है। ये हमारा तरफ से एक ट्रिब्यूट है, बट एक दुखदायक भी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने 1 रैंक 1 पेंशन पर अमलावरी का किया ऐलान। एक्स सर्विसमैन में खुशी की लहर। टीचर्स डे के मौके पर मुल्क भर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पेश किया गया खिराज। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। राना हिता चवेला प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली नाकाबिले कबूल। तेलंगाना हुकूमत की एकतरफा रवैये की कुल जमाती कायदीन ने गवर्नर से की शिकायत। वैदिक कल्चर का दीगर मज़ाहिब पर तसल्लुत नाकाबिले कबूल। दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।